Hello student of 10th class. I hope all of you okay. We are discussing nationalism in India, second chapter of our history portion. Nationalism in India, and previous video what we have studied about, actually history is the study of our past, and in previous classes I hope all of you know that Herodotus is father of history, known as father of history, and history is study of past. And when we study history serial wise and try to understand that seriality of events, that how all events took place in past, our past. Suppose that in 1 year, especially suppose that in 7th class you are in particular in any year in 7th class, and next in 8th class, and if I ask anything about your past, about your educational past, then you will be explain about first 6th class. Then you will say that I studied in 6th class, I have done these things, and I reached in 7th class, then 8th class, then 9th class, then 10th class, class 10th. Similarly, if we study about our past serial by serial, it means if we are able to arrange the events serial by serial, which events took place first and then after what event took place in history. One thing, in previous video I explained birth of Mahatma Gandhi. In age of 13 he got married with Kasturba, 13, and at the age of 18 he became father of a son. 18 it means 18, and in 1889 he went to England, and later back in 1891 into and got degree of barrister, became a barrister, and in 1893 he went to साउथ अफ्रीका, एंड वहाँ की कहानी को हमने क्या पढ़ लिया है, अफ्रीका की कहानी को. एंड देन ही रिटर्न बैक इन 1915, 9 जनवरी 1915. अब यहाँ पर हमारा जो मेन आज का पोर्शन रहेगा वो रहेगा चंपारण सत्याग्रह. क्या रहेगा? चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह. Champaran Satyagraha was first experiment of Gandhiji's weapon of Satyagraha. First he experimented Satyagraha in Champaran, Bihar, now a district, but at that time Champaran was a village of Bihar. What you have to know? On 9 January 1915, this is it. आप यू कैन रियलाइज दैट कि 9 जनवरी में बहुत बड़ी ठंडी हो रही है. ठीक है, ठंडी हो रही है, काफ़ी अच्छी ठंडी हो रही है भारत में. नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं. मानसून पढ़े होंगे आप लोग, हम पढ़ाए हैं. 9th में नहीं पढ़ाएं, 9th वालों को पढ़ाएं. तो 9 जनवरी को जब ये भारत आए तो इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में अपना कदम नहीं रखा. स्टूडेंट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, बहुत मायने की चीज़ है. आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के वीडियोज़ भी देखेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से वहाँ ही सब समझ में आते. एकेडमिक वीडियो आपको यूट्यूब पे देखिएगा, इस तरीके से कोई नहीं बता रहा होगा, शायद मैं मानता हूँ ऐसा. बहुत से ऐसे यूट्यूबर अच्छे से बता रहे हैं. ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ और बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बट लेट्स ट्राई टू. व्हेन महात्मा गांधी रीच्ड टू इंडिया on 9 January 1915, at that time Britain was engaged in First World War. First World War on the way at that time, because you know that from 28 July 1914 to
11 नवंबर 1918 एंड गांधी जी 1915 में ही रीच्ड. When he came here and he was very impressed by Gopal Krishna Gokhale. गोपाल कृष्ण गोखले एंड उन्होंने उनको अपना पॉलिटिकल मेंटर बनाया कि आप हमारे राजनीतिक गुरु हैं, आप माने जाएंगे. तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के साथ 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आए और 9 जनवरी के बाद तुरंत 11 जैन को इन्होंने साबरमती में अपना आश्रम बनाया. और इन्होंने आश्रम बनाया तो गांधी जी का एक उनकी ऑटोबायोग्राफी में एक वो है कि हमें दुनिया के किसी भी सिस्टम में तभी एंट्री लेना चाहिए जब उसके बारे में बेहतर नॉलेज हो जाए. तो भारत की एंट्री और भारत में कोई कदम बढ़ाने के पहले हमें भारत का पूरा जायजा लेने की ज़रूरत है पूरा. इट मीन्स फॉर इंटरफेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सिस्टम एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी we have to first observe all situation, all political situation, all social situation and all religious system and how people are integrated or they are disintegrated, maybe any type of relation, what type of, and what type of government and how government is working in this country. For observing or for understanding these all the things, Gandhi ji traveled throughout our country, entire country, with Gopal Krishna Gokhale. 1915 whole year he didn't do anything, only in Sabarmati ashram and walking, traveling, only walking and traveling with Gopal Krishna Gokhale. 15 and in 16 also. When in 16 it means पूरा 15 का 1915 पूरा उन्होंने घूमा. 1916 का ये ईयर इज जस्ट लाइक ये ईयर है, ठीक है. 1916 को भी उन्होंने पूरा घूमा और 1916 के लास्ट में दिसंबर के मंथ में लखनऊ में सेशन होता है कांग्रेस का. एक्चुअली कांग्रेस का गठन आपको हम बता देते हैं फिर कि 25 कांग्रेस का गठन कब हुआ था. 25 यहाँ पे लिख दे रहे हैं 25 दिसंबर 1885. अब ये बच्चों का बात है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1885 में जब इसका गठन हुआ कांग्रेस फॉर्म हुई. A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके उसमें नेतृत्व में. तो ये हर साल कांग्रेस क्या करती थी, सेशन करती थी टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्ट्रेटजीज पॉलिटिकल, टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज एंड स्टडीज ऑफ पार्टी सॉरी. तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए तो दिसंबर में कहाँ होने वाला था, लखनऊ में क्या होने वाला था, इसका सेशन होने वाला था. यहाँ पर गांधी जी भी पहुँचे हुए थे. गांधी जी लखनऊ सेशन में, यहीं बगल में लखनऊ है, गोरखपुर से बस्ती से कितना लखनऊ अपना, यहाँ पर गांधी जी पहुँचे हुए थे लास्ट टाइम. 2 साल घूम लिए, पूरे देश भारत को देख लिए. तो यहाँ पर कुछ बिहार के कुछ क्या कहते हैं जो जमींदार लोग, कुछ लोग आए थे, काफ़ी पहुँचे हुए उत्तर नॉर्थ इंडिया के काफ़ी फेमस लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे. कांग्रेस का सेशन था, पार्टी का सेशन था. कांग्रेस एट दैट टाइम एक लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी थी जो पूरे भारत को देख रही थी. तो स्वाभाविक था कि जो भी डोमिनेंट लोग थे सोसाइटी के उनको यहाँ मिलना स्वाभाविक है. तो दुनिया के क्षेत्र के दूर के क्षेत्र के लोग अपना, क्योंकि कांग्रेस का काम था कि भारत के पूरे नक्शे में हर एक जगह सेशन करके और लोगों को इंटीग्रेट करने का काम करेंगे. तो इस समय आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि 1907 में जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो उस समय 1906 में 7 में तो कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट में. और उसके पहले
मुस्लिम लीग का गठन 6 में कर दिया गया और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से क्या हो गई, अलग हो गई। तो इस 6 में पहले नंबर गांधी जी को एक चीज़ समझ में आ गया कि जो डिसइंटीग्रेशन है पॉलिटिकल, इसको हमें पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एंड जो मॉडरेट हैं वो लगभग एक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग एक पार्टी बनी थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। हमारा मेन फोकस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नहीं है स्टूडेंट 10th क्लास के। तो वो चीज़ क्या हुआ, इकट्ठा हो गए, ठीक है, एक करके गांधी जी। तो गांधी जी एक अपना बहुत अच्छा इमेज बनाए और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही पूरे भारत का भ्रमण किए थे, आपको जानना चाहिए। यहीं पर एक व्यक्ति आए थे 2016 के लखनऊ सेशन में। लखनऊ से गांधी जी एक व्यक्ति मिलते हैं गांधी जी से, जिनका नाम आपको जानना चाहिए, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल एक जमींदार थे बिहार के चंपारण गांव के, ठीक है। ये गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी, आई रिक्वेस्ट यू टू कम इन चंपारण टू सी एंड फॉर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट देयर इंडिगो प्लांटर आर फेसिंग। इंडिगो प्लांटर नॉट इंडिगो कल्टिवेटर, इट मीन्स फार्मर who are producing indigo, नील, are facing a lot of discriminative policy and challenges by ब्रिटिश नीलाहे, जिनको नील की खेती करवाते थे। जो गांधी जी ने आने से मना किया, नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बाद में मना लिया गया। 16 दिसंबर ठंडी का महीना था। तो गांधी जी कहा कि देखो भैया, ठंडी बहुत है और ठंडी में हम बिहार आ नहीं पाएंगे, तो ऐसे हम कमज़ोर पीस हैं, तो ठंडी में दिक्कत होगा। तो दिसंबर में नहीं गए, जनवरी में नहीं गए, फरवरी में नहीं गए, मार्च में भी नहीं गए। अप्रैल में इन्होंने यहाँ से 10 अप्रैल 1917 में ये क्या किए, बिहार के लिए रवाना हो गए। कहाँ के लिए? बिहार के लिए। कब? 10 अप्रैल 1917। बिहार के लिए रवाना हो गए कब? 10 अप्रैल 1917। आपके टेक्स्ट बुक में भी 16 लिखा होगा, उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर गए, इनके साथ कौन थे? राजकुमार शुक्ला तो रहेंगे ही। बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार के ही थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। आप और भी लोगों को नहीं जानेंगे। जेबी कृपलानी थे, जो हमारे यहाँ फ्लैग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हम बताए रहे, टीचर आपके बताए रहे होंगे, आप जब 9th क्लास में थे, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आपको जेबी कृपलानी फ्लैग कमेटी के वो थे, चेयरमैन थे जेबी कृपलानी, और भी कुछ लीडर्स थे, ठीक है, और भी कुछ थे लीडर, अब सबका नाम नहीं याद है, लेकिन ये मेजर 3 थे। ये लोग बिहार में पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं? चंपारण एक गांव था। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या थी बेटा? देखो, हमारा मेन आज का इन दिस वीडियो वी विल ट्राई ओनली चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी बिहार में पहुँचते हैं, तब वहाँ का कमिश्नर जो चंपारण का, अरे गांधी जी तो बड़ा वो है, बड़ा इसकी कलाकारी सुने हैं, साउथ अफ्रीका में मार के हिला के रख दिया था और यहाँ भी बुढ़वा करके हिला के रख दिया है। देखो, वो हम लोग जो डिवीजन का मेथड अपना रहे थे, फूट डालो राजे, तो ही इज टोटली वर्किंग फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पार्टीज एंड ऑल पीपल ऑफ आवर कंट्री, ऑफ इंडिया। तो वो बौखला गया थोड़ा सा, कहा गांधी जी प्लीज़ यू कांट एंटर इन चंपारण। तो गांधी जी नहीं माने, चंपारण चले गए। बाद में उनको माना गया, चंपारण में गए। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, इसको आपको जानना है। एज ए 10th क्लास स्टूडेंट क्या जानना है आपको? इन सब चीज़ों को समझने के लिए जानना है आपको। चंपारण में जानना है कि 17 में चंपारण बिहार में एक जिला अभी हो गया, वो पहले गांव था तब क्या, आज़ादी के पहले। तो उस चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी? लोग, सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो नील की खेती कराती थी, क्योंकि नील की फॉर कलरिंग ऑफ क्लॉथ देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज, समझ रहे उस समय तक ले। तो यहाँ इंडिगो का प्रोडक्शन कराया जाता था, नील की खेती कराई जाती थी। अब वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर कराई जाती थी, तो इसको कंपलसरी कर दिया गया। कंपलसरी ये कर दिया गया कि 20 कट्ठे की खेती में 3 कट्ठा आपको क्या है, कंपलसरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। दैट वाज कंपलसरी ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 कट्ठा एरिया दैट्स एरिया 20 कट्ठा। अगर
इसको मान लें एक एरिया, तो 3 कट्ठा जो था वो आपको इंडिगो का प्लांटेशन करना ही था, इंडिगो का प्रोडक्शन करना ये कंपलसरी था। अब चूंकि जर्मनी में आर्टिफिशियल केमिकल नील और कलर का आविष्कार हो चुका था तब तक ले, तो बहुत सी ऐसी मिल थी, बहुत सी फैक्ट्रियां थी जो बंद हो गई थी नील की, यानी नील का प्रोडक्शन भारत में बंद होने लगा था तब तक ले। तो जो नील की खेती चंपारण में कर रहे थे, वो लोगों ने कहा कि भैया नील का उतना वो हो नहीं रहा है, तो जो नीलाहे थे, जो नील की खेती करवाते थे ब्रिटिशर्स जबरदस्ती, वो लोगों ने अलग अलग प्रकार के टैक्सेज इम्पोज कर दिया। जब डिमांड कम हुआ तो इसको और दाम बढ़ा करके टैक्सेज कर दिया। ये प्रोडक्शन 3 कट्ठा का करना है आपको, उसका दाम हम डिसाइड करें। मतलब हम ब्रिटिश सर है, हम आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना है, अगर आपसे 5 रुपये किलो लीटर उसको खरीदेंगे, जो भी उसका रहा होगा, आई डोंट नो, तो उसको आप वैसे ही देना पड़ेगा। मतलब वो 3 कट्ठे की खेती में जो आप प्रोडक्शन करें उसमें आपका कोई अधिकार नहीं, सिर्फ आप प्रोडक्शन करेंगे, उसका हम बिजनेस करेंगे। तो इससे लोगों को, बड़ी किसानों को, इंडिगो प्लांटर्स को, ये मैप में आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हमेशा नहीं आता, 2 ही क्वेश्चन आता तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है कि चंपारण कब गए थे इंडिगो, तो इंडिगो प्लांटर के लिए किया था, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इंडिगो प्लांटर ये सब इनके लिए किए। गांधी जी गए, मिले, जायजा किया और एक कमेटी की गठन किया गया। उस कमेटी के मेंबर गांधी जी भी रहे हैं। और उसके बाद में फिर ये हुआ कि गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जितना इनसे पैसा वसूला गया है उसका एक बहुत अच्छा हिस्सा, 50% से ज़्यादा उन्होंने डिमांड किया, उसको मुआवजा दिया जाए किसानों को, और ये नील की खेती को ख़त्म कर दिया जाए, या तो इसको ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। किसी का अगर प्रोडक्शन करने का मन है, बेचना है, तो वो करे, यानी दिस कैन नॉट बी फोर्सेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। और इसको 3 कठिया सिस्टम कहते थे, 3 कठिया सिस्टम, दिस वाज 3 कठिया सिस्टम। तो 3 कठिया सिस्टम फोर्सफुली था, लेकिन इसको फोर्सफुली ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार 25% कंपनसेशन पे क्या हुई, 25% उसने क्या किया, कंपनसेशन दे करके, और ये चीज़ हो गया। अब गांधी जी फूल के गुलगुला हो गए। गांधी जी क्या हो गए, फूल के गुलगुला। क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने क्या पाई, सफलता पा गई। वो काफ़ी अच्छी सफलता पाने के बाद इन्हें अब इनके मुंह में खून लग गया, अब ताकत बन गई। जब हमें पहली सफलता मिलती है तो वी बिकेम स्ट्रांग। तो ये गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हो गया। अब इसके बाद देखते हैं गांधी जी अगला कदम कहाँ बढ़ाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। जो भी चीज़ें चंपारण में छूटी भी होंगी कुछ चीज़ें, तो हम अगले सत्याग्रहों में बताते रहेंगे, तो वहाँ पर उस चीज़ों को हम कवर करते रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये चंपारण, जो 3 कठिया पद्धति थी चंपारण में, यहाँ पर सत्याग्रह करके, विरोध करके, अपना जो भी जिस तरीके से मेथड उन्होंने अपनाया, और अपना क्या किया, इस 3 कठिया सिस्टम को ख़त्म कर दिया। और गांधी जी को, हाँ एक चीज़ बता दें, इसमें एक और लीडर थे जिन्होंने मना किया था, लेकिन इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को, मतलब गांधी को, महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। इनका नाम गांधी था, इनका नाम गांधी था। यानी चंपारण सत्याग्रह में ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तभी से उनको महात्मा गांधी कहा जाता था। ये आपको जानना चाहिए, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।